Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree and this is another video of our NABARD Grade A to Z series. In this particular video, we are going to discuss the topic NABARD versus banking. Now students, I'm going to tell you that what all are we going to discuss here, but this video is primarily for those students who are right now looking for or searching for different examinations, who are thinking which one's preparation should we start, what should be our focus, right, and who wants to compare different jobs and then decide which preparation they should start. So for all those of you who have not started their preparation yet but who are just comparing different examinations and different jobs, this video is particularly for all of you. And if you're interested in watching other such videos of this particular series, the description or the link of that particular box is given in the description box below. You can go and watch all these videos over there in the entire series. Now students, before we start this particular session, I just wanted to tell you that apart from the comparison between different examinations, there is a lot of information you might be currently seeking about NABARD as an organization and NABARD Grade A as an examination, be it the previous year questions, be it the syllabus, what is the job, what is the job profile. So all of that information, right, we have curated all that information at one single place, and that single place is this guidebook. The link to download this free guidebook, it has been provided to you in the description box below. You can download it from there. Alright, so students, as far as the NABARD Grade A versus banking debate is concerned, so basically there are two pillars. How can you prepare them together? Now this is one area which we are not going to discuss in this particular session. Here we are going to discuss and compare basically what are the perks and what are the lifestyle. अब students, यहाँ पर हम चीज़ों को compare इस sense में नहीं करेंगे कि ये ज़्यादा better है, इसको choose कर लो, ये ज़्यादा better है, उसको choose कर लो. Rather हम कुछ basics के ऊपर कुछ आपको सिर्फ ये बताएंगे, कुछ एक इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे अपनी चॉइस के बेसिस पे, अपनी लाइकिंग के बेसिस पे, अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे. आपको अपना डिसीजन खुद बनाना है कि आपको NABARD ग्रेड ए ज़्यादा पसंद है या आप बैंकिंग की तरफ ज़्यादा आप झुकाव महसूस करते हो. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को. देखो, तो जो सबसे पहला बेसिस आता है ना, वो आता है सैलरी का. चाहे हम कितना भी इस चीज़ को इग्नोर कर लें, बट सैलरी समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ तो ऑफकोर्स NABARD ग्रेड ए की जो सैलरी है, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ दी बैंकिंग. और यहाँ बैंकिंग में जो हाइएस्ट पोजिशन है, दैट इज़ ऑफ SBI PO, अगर मैं उसको लेकर के चलूँ तो NABARD की जो इन हैंड सैलरी आपको ऑन अ मंथली बेसिस मिलती है, इट इज़ मोर देन द बैंकिंग सेक्टर, द SBI PO जॉब. और अगर आप मुझसे पूछे कि कितनी ज़्यादा है, तो अराउंड 30 to 40,000 का जो गैप है वो यहाँ पर इन दोनों सैलरीज में हमें देखने को मिलता है ऑन अ मंथली बेसिस. सो दैट वाज अबाउट द सैलरी क्राइटेरिया. उसके बाद में आता है वर्क प्रोफाइल. देखो, अगर NABARD की वर्क प्रोफाइल की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपका काम जो होता है इन द इनिशियल ईयर्स, इट इज़ द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड द रेगुलेशन. और जो लेटर ईयर्स होते हैं या जो आपकी लेटर स्टेजेस ऑफ योर प्रमोशंस होते हैं, उसके अंदर आपका काम बेसिकली होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. तो इनिशियली आप ऑडिट्स करेंगे, सुपरवाइज करेंगे बैंकिंग्स को. ठीक है, अगर कोई कंप्लेन है तो उसको एड्रेस करेंगे. इस तरीके की आपकी एक जॉब प्रोफाइल होती है इन द इनिशियल ईयर्स. ऑन द अदर हैंड, बैंकिंग के अंदर अगर आप एक SBI PO की तरह ज्वाइन करें तो यहाँ पर आपकी जो वर्क प्रोफाइल होती है उसके अंदर आपको पब्लिक डीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं. NABARD के अंदर पब्लिक डीलिंग्स नहीं होती हैं, ज़ीरो होती हैं. यहाँ पर आप जो है दूसरे बैंकिंग्स को बैंक्स जो है उनको रीफाइनेंस करते हो, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पर आपकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग्स होंगी. आपको लोन्स ग्रांट करने हैं, आपको लोगों की जो डे टू डे लाइफ इशूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे रिजॉल्व करने. तो ये सारा काम जो होगा वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर होगा. उसके बाद आती है ग्रोथ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. तो देखिए स्टूडेंट्स, NABARD के अंदर अगर मैं प्रमोशंस की बात करूँ तो NABARD में जब आप ज्वाइन करोगे तब आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे. उसके बाद अगली पोस्टिंग जो होगी वो आपकी एज अ मैनेजर होगी. तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी स्टडी और काफी स्टेबल है. ठीक है, और बैंकिंग के अंदर भी यही सेम सीन है कि आपकी पोस्टिंग्स जो है वो स्टडी और स्टेबल होती हैं. लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूँ तो NABARD ग्रेड आपको थोड़ा ज्यादा एक बड़ा डोमेन देता है एज फार एज द NABARD एज फार एज द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पर सुपरविजन भी होगा, वहाँ पर आपके पास ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट भी होगा, वहाँ पर आपके पास रीफाइनेंस का डिपार्टमेंट भी होगा, वहाँ पर आपके पास डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी होगा. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पर आप काम करोगे. तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं NABARD के अंदर ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग का जो डोमेन है
वो कहीं ना कहीं जो बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज होती हैं वहीं तक लिमिटेड होता है, लेकिन जो हमारा नबार्ड ग्रेड ए का डोमेन होता है इट इज़ मच मच बिगर। वहाँ पर रीफाइनेंस भी होगा, वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी होंगी जो नबार्ड फाइनेंस करता है। उसके अलावा आपकी जो सुपरविजन एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग्स हो सकती हैं। तो ग्रोथ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नबार्ड में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद में बात आती है रिस्पेक्ट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही सरकारी नौकरियाँ हैं तो सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट आपको दोनों से ही मिल जाएगी, बट of course NABARD grade A is one level higher as compared to a SBI PO। तो यहाँ पर आपकी जो रिस्पेक्ट होती है that is slightly higher than the banking sector, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ पोस्टिंग्स की, नबार्ड के अंदर ऑल्दो रूरल बैंकिंग या रूरल सेक्टर से नबार्ड रिलेटेड है, इसको सोच के बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी पोस्टिंग जो है वो रूरल एरियाज में होगी, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो। नबार्ड के अंदर आपकी सारी पोस्टिंग्स जो होती हैं वो स्टेट हेडक्वार्टर्स विच इज़ द स्टेट कैपिटल, ठीक है, जो भी स्टेट कैपिटल्स होंगी मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ही होती हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग्स यहाँ पर होती हैं। फॉरेन पोस्टिंग्स जो है वो आपको नबार्ड के अंदर नहीं मिलती हैं क्योंकि नबार्ड का कोई भी फॉरेन ऑफिस नहीं है, ठीक है। और जो डीडीएम पोस्टिंग भी होगी वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर ही होगी, यहाँ पर भी आपको रूरल एरियाज में नहीं जाना। तो ऑल्दो इट माइट सीम कि नबार्ड के अंदर आपकी रूरल पोस्टिंग्स होंगी, बट नबार्ड में रूरल पोस्टिंग्स जैसा कोई भी सीन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करती हूँ तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपकी जो पोस्टिंग है वो रूरल एरियाज में भी हो सकती है, रूरल ब्रांचेस में भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस तरीके की प्रेफरेंसेज हैं, बिकॉज इन माई ओपिनियन रूरल पोस्टिंग्स आर नॉट समथिंग विच यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम रूरल एरियाज में रहेंगे, एंड रूरल एरियाज में पोस्टिंग इन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये फैक्ट मैंने आपको स्टेट किया है कि किस जगह पर कौन सी पोस्टिंग होती है। नाउ इट डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंसेस कि आप किस तरीके से इस बात को जज करते हैं। उसके बाद में बात आती है ट्रांसफर पॉलिसीज की। तो ट्रांसफर पॉलिसी का अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो सेम ही होता है कि 4-5 साल बाद जो है हमारा ट्रांसफर जो है वो हो जाता है बैंकिंग में भी और नबार्ड ग्रेड ए के अंदर भी। नबार्ड के अंदर ट्रांसफर का हमें एक थोड़ा सा वो ध्यान में रखना होता है कि नबार्ड के अंदर जो ट्रांसफर्स होते हैं दे आर रैंडम। आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। 1 ईयर यू आर इन चंडीगढ़, द नेक्स्ट पोस्टिंग इट कैन बी इन दी चेन्नई। इस तरीके से आपकी पोस्टिंग्स हो सकती हैं, काफी रैंडम हो जाती हैं ये। बैंकिंग के अंदर ऑन दी अदर हैंड आपकी जो पोस्टिंग्स होती हैं वो इतनी रैंडम नहीं होती हैं। मेजरली 50 to 70 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही आपकी पोस्टिंग्स जो होती हैं वो हो रही होती हैं। सो दैट वॉज अबाउट द ट्रांसफर। उसके बाद में आता है फर्दर स्टडीज का स्पॉन्सरशिप। तो देखिए स्पॉन्सरशिप जो है वो हमारे पास जैसे आरबीआई के अंदर एक गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम है तो उसके अंदर स्पॉन्सर किया जाता है। नबार्ड के अंदर ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप स्कीम नहीं है। अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए नबार्ड आपको लीव्स ग्रांट कर देता है। द लीव्स कैन बी पेड लीव्स एज वेल इन सर्टेन केसेस, बट द फर्दर स्टडीज दे आर एनकरेज्ड ओवर हियर आई वुड से, बट नॉट स्पॉन्सर, ठीक है। नबार्ड स्पॉन्सर नहीं करता इन स्टडीज को, कोई स्कॉलरशिप नहीं है नबार्ड के अंदर लाइक आरबीआई, लेकिन यहाँ एनकरेज किया जाता है, पेड लीव्स आपको मिल सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड सिमिलर टू दी नबार्ड बैंकिंग के अंदर भी आपको एनकरेज किया जा सकता है या आपको लीव्स ग्रांट की जा सकती हैं, लेकिन स्पॉन्सर बैंकिंग में भी नहीं किया जाता। उसके बाद में बात आती है वर्क लाइफ बैलेंस की। तो स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर जो है हम न्यूज़पेपर्स में भी ये बात काफ़ी बार देखते हैं। इनफैक्ट जो हमारे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बैंकिंग में काम कर रहे होते हैं और वो नबार्ड की तरफ आना चाहते हैं, उनका एक जो रीज़न होता है मेजर वो वर्क लाइफ बैलेंस होता है। बैंकिंग सेक्टर की जो जॉब होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक जॉब होती है। आप जाते सुबह 9 या 10 बजे हो, लेकिन आप वापस कितने बजे आओगे इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। आपकी पब्लिक डीलिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, एंड एज यू ऑल नो दैट इन सर्टेन एरियाज द पीपल दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे माइट बी रूड टू दी ऑफिस, राइट। तो यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस होते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के, खासकर सैटरडेज भी सारे ऑफ नहीं मिलते। ऑन दी अदर हैंड अगर नबार्ड का कोई सबसे बड़ा पर्क है सो दैट इज अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पर आपके सारे सैटरडेज ऑफ होते हैं, यू ओनली 5 डेज अ वीक आपको काम करना होता है, और जिसमें भी आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 9 to 5 फिक्स होते हैं। बहुत रेयर ऐसा चांस होता है जब पार्लियामेंट्री कोई सेशन चल रहा है, अगर उस टाइम पे नबार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या अगर सीनियर मैनेजमेंट का ऑडिट है, तो इन सब केसेस के अंदर ही ऐसा होता है जब आपको 5 o'clock के बाद रुकना होता है। अदरवाइज जो आपके नॉर्मल ऑफिस आवर्स हैं उसके बाद में आप ऑफिस में नहीं रुकते हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो नबार्ड की सबसे बड़ी खासियत है एज कंपेयर टू दी बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद में आती है जॉब सिक्योरिटी। तो देखिए दोनों ही गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो सिक्योर तो बैंकिंग सेक्टर भी है और नबार्ड ग्रेड ए भी है, बट नबार्ड ग्रेड ए के अंदर जो सिक्योरिटी है इट इज मोर एज कंपेयर टू दी बैंकिंग बिकॉज ऑफ वन रीजन। बैंकिंग के अंदर हम
कई बार ये चीज़ सुनते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो, फ्रॉम द एडिटोरियल्स ऑल्सो, कि बैंकिंग को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज कर देने का एक रिस्क जो होता है वो होता ही होता है, कि द ओल्ड स्टाफ इट इज़ नॉट दैट एफिशिएंट, द वर्किंग ऑफ द बैंक्स इज नॉट एफिशिएंट। तो उस केस के अंदर प्राइवेटाइजेशन की जो बात होती है वो बार बार कहीं ना कहीं बीच में आती रहती है। तो इस वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। बट नबार्ड ग्रेड ए, क्योंकि ये हमारी कंट्री का एक डेवलपमेंटल बैंक है, एपेक्स डेवलपमेंटल बैंक है, रूरल बैंक्स का रेगुलेटरी बॉडी भी है, तो उस केस के अंदर नबार्ड ग्रेड ए के अंदर जो जॉब सिक्योरिटी है इट इज मोर एज कंपेयर टू द बैंकिंग सेक्टर। सो स्टूडेंट, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी क्रिस्प कंपैरिजन एज फार एज बोथ दीज एरियाज आर कंसर्न, द नबार्ड ग्रेड ए वर्सेस बैंकिंग। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो का पर्पस किसी भी जॉब को डिमीन करना नहीं था कि बैंकिंग अच्छी नहीं है या नबार्ड ज्यादा अच्छा है, ये बिल्कुल भी ऐसा कहना नहीं था। यहाँ पर हमने सिर्फ फैक्ट स्टेट करें। अब आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी लाइकिंग्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको किसकी प्रिपरेशन को करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। बट and this preparation together is one thing which we are going to discuss in the upcoming or the other different videos, not in this particular video. This was all that I wanted to discuss as far as this particular session is concerned. Now students, if you are interested in having any paid mentorship as far as the NABARD grade examination is concerned, then you can visit our website edutab.in. Just wait a second, because of some internet issue I think the internet it got disconnected. Yes students, so you can visit our website edutab.in, and here we have dedicated courses for the NABARD grade examination. The first course that we have, it is the 11-hour trial course. Here in just ₹1 we are going to give you what are the kind of deliverables that we are going to provide, what is the level of those deliverables, at what pace do we teach, right? So this will give you an overall idea of the kind of deliverables that we provide, and you can judge our quality on the basis of this particular course, right? Apart from that, we have a phase 1 and phase 2 test series. If you just want to test the waters for yourself, you can enroll in the test series. Then we have a silver course wherein we provide the mentorship for the phase 2 and the interview program, and then we have a gold course wherein we provide the mentorship for the phase 1, phase 2 and the interview. So that was all that I wanted to discuss in this particular video. I hope it was helpful for you. Thank you so much, and I wish you all the very best.